It's the 13th of July in Butler, Pennsylvania. Former U.S. President Donald Trump speaks at a rally. It's only days until he plans to accept the official Republican nomination. He's just minutes into his speech when shots are fired. Take a look at what happened. इसमें ना एक्चुअली काफ़ी टाइम पर हम देखते हैं ना, तो जैसे कि अभी यहाँ पर ठीक है, When shots are fired. Take a look at what happened. जो अभी पहला शॉट आएगा वो लगा, लेकिन रियलाइज होने में जो ब्रेन है वो प्रोसेस करने में आई थिंक 1 से 2 सेकंड लेता है. यहाँ पे लग चुका है लेकिन रियलाइज हुआ यहाँ पर. सो Trump got hit, but survived. Someone tried to assassinate him in broad daylight. Here is how it unfolded. By the time this video is published, new details might have emerged. It's a hot, sweltering early evening as tens of thousands gather here to see Trump. Pennsylvania is one of 6 vital swing states that will help secure the win in the next presidential election. So swing states is जहाँ पर कुछ भी हो सकता है. It's not particularly either Democrat or Republic. Butler skews heavily Republican, and it is a blue-collar town. This is a big crowd. This is a big, beautiful crowd. He is surrounded by supporters. Most are sitting or standing in front of the stage. Some sit on the bleachers, center, left, and right. Trump's support staff and security, including Secret Service agents, are right at the stage. Behind him are 3 large buildings. On the roof of the building on the far left and on the far right are Secret Service snipers. They are So these are the snipers जो ट्रम्प को रोकने, मतलब ट्रम्प को प्रोटेक्ट करने के लिए थे. constantly scanning the उसकी जो पर्सनल सिक्योरिटी. surroundings, looking for threats. They can be seen in this video filmed by a crowd member. Hello, Butler, and hello to Pennsylvania. I'm thrilled to be back. Trump begins with his speech. Things seem normal. He turns to the right and points at a chart showing statistics on border crossings. At the same time, several people in the crowd notice a man with a gun on the roof of a building close by. He's got a gun! It's too late. Take a look at what happened. All of a sudden, bullets start flying. One even gets captured on camera. यार फोटो जो जिसने भी फोटोज लिए ना, द अल्टीमेट, द एंटायर पॉलिटिकल कैंपेन जो ट्रम्प का है उसको पूरे तरीके से पिक्चर में कैसे उतारना है. जो फोटोग्राफर था इज हाईली स्किल्ड. ये फोटो और एक और फोटो जो विद द फिस्ट बम्प जो दिखाता है वो, उसने पूरा इलेक्शन ही चेंज कर दिया. अमेरिका के अंदर अभी इलेक्शन किस तरह से होगा और क्या रिजल्ट आएगा वो इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद चेंज हो चुका है. Camera. Another building, about 400 feet or 120 meters north of the stage. The shots are coming from here, on the roof. 400 feet or 120 meters north of the stage. 120 meters, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था बेसिकली. 100 meters for a gun is nothing. The shots are coming from here, on the roof. The gunman is 20-year-old Thomas Matthew Crooks. अबे 20 साल का लौंडा है यार ये. The gunman is टॉमस मैथ्यू क्रूक्स, इसके नाम में क्रूक्स है. बट 20 साल के लड़के के पास एक असॉल्ट राइफल with the capability to shoot anyone within the 100-200 meter range. यही अमेरिका की प्रॉब्लम है और इसी की वजह से अमेरिका चल रहा है. तो अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है उसका गन कल्चर है. एनी वन कैन गो आउटसाइड, दुकान पे आप जाओ, आप गन खरीद लो और डायरेक्टली आप कुछ भी कर सकते हो उसके बाद. एंड उसी की वजह से जो पब्लिक शूटिंग्स है वो बहुत ज़्यादा होती है. स्कूल शूटिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा होती है. आप यूएस में या कहीं भी, मतलब मेजर सिटी में जैसे न्यूयॉर्क हो गया या बॉस्टन हो गया, ऐसी सिटीज़ के अंदर मगिंग और एली शूटिंग्स, जो गलियों के अंदर कभी भी आप अंधेरी गली में जा रहे हो तो आपको गन पॉइंट पे लूट सकते हैं बहुत ईजिली. एंड यही जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है ना, वो यही है. एनीवेज चलो देखते हैं कैसा हुआ एग्जैक्टली. 20-year-old Thomas Matthew Crooks.
He is armed with an AR-15 semi-automatic rifle. The gun was legally purchased by his father. First, The gun was legally purchased by his father. अब सिचुएशन वही आ जाती है कि पहली चीज़ तो लीगली परचेज आप कर क्यों रहे हो? वाई डू यू नीड अ गन? आप अगर बेसिकली पूरे के पूरे कंट्री में आप गन कल्चर को बंद भी कर दो तो भी आपके पास एक्सपोर्ट्स करने का बहुत है. योर इकोनॉमी ऑब्वियसली थ्राइव्स विद गन वायलेंस, लेकिन उसको अगर आप बंद भी कर देते तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूम कर सकती है. बट स्टिल उसके बावजूद आई थिंक अमेरिका ये अभी भी नहीं सीखेगा, इवन आफ्टर लाइक मल्टीपल assassinations ऑफ मल्टीपल लीडर्स. he apparently fires a round of 3 shots. Take a look at what happened. Trump reaches up with his hand. The first bullet pierces the upper part of his right ear. He will किस्मत है यार, 1 सेंटीमीटर भी इधर होता तो सीधा सर में गोली थी. 1 सेंटीमीटर से बच गया, और वो भी बिकॉज वो टर्न हुआ तो वो अगर ऐसे देख रहा था और गन बुलेट यहाँ से आ रही है लेट्स से, तो जैसे ही वो यूं देखा उसने तो अब यहाँ से निकली है एंड लेट्स से यहाँ से, तो किस्मत का ही था भाई ये तो. will later say that turning over अब ये to क्यों the हुआ, right इसके at that ऊपर एक जो exact moment कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे अभी, ठीक है. तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि किसने करवाया होगा, क्या यूएस के अंदर जो है वो किस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी क्या है इन लोगों का जो कि इलेक्शंस और पूरे के पूरे सिस्टम को जो कंट्रोल करते हैं उनका, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. prevented the bullet from hitting him right in the head. He ducks down behind the podium, and within 3 to 4 seconds after the first shot, Secret Service agents swarm the former president and shield him with their bodies. Crooks opens fire again, immediately, with 5 more shots. Right before the first shot by Crooks, one of the snipers on the left roof behind Trump seems to detect the gunman and prepares to return fire. Take a look at what happened. Some outlets report that these snipers killed Crooks, while the Secret Service confirmed its personnel neutralized the shooter. We could not corroborate that it was in fact these specific agents. The gunman also hit spectators on the bleachers. One man died, 50-year-old Corey Comprador. 2 others were critically injured. With अभी क्या इनोसेंट लोगों की डेथ हो रही है, कोई इसको एंड स्टिल उसके बावजूद भी ना अभी इसके बाद क्या हुआ वो तो मतलब ये तो जो पूरा इवेंट है ये पूरा इंसिडेंट है ना, इसलिए इलेक्शन का पूरा ऐसे सिल्वर प्लेटर पे प्रेसिडेंसी सजा कर दे दिए ट्रम्प को कि लो बन जाओ प्रेसिडेंट. Trump's microphone still on, we can hear the tense exchanges among the agents. Move to spare. Hold. When you're ready. On you. Ready. Move. Move. Go. About 42 seconds after Crooks opened fire, they confirm the shooter is down. Are we good? Shooter's down. Are we good to move? Let's move. Let's move. They prepare to escort him to an armored vehicle. Come on. Let me get my shoes. Let me get my shoes. I got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we gotta move to the bus. Move to the bus. ट्रम्प ने यहाँ पर जीत लिया इलेक्शन. Let me get my shoes. Watch out. Wait. In about 75 seconds after ducking to the ground, Trump raises his fist. He is mouthing the words, "Fight, fight, fight." The resulting photos immediately travel. ये जो कैमरा मैन है ना इधर ये वाला, आई डोंट नो अगर मेरा कर्सर इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बट जो राइट इन द मिडल जो कैमरा मैन है नीचे, उसने जो पिक्चर लिया, उसने पिक्चर लेकर पूरे के पूरे इलेक्शन कैंपेन को बदल कर रख दिया. और जब Fight. पिक्चर आएगी वो The resulting photos immediately travel around the entire world. ये जो अभी सॉरी एंड दिस वन आई थिंक दिस पिक्चर इज द प्रेसिडेंसी कंफर्म्ड. सो अगर ट्रम्प इलेक्शन जीतता है तो वो इस पिक्चर की वजह से होगा. The crowd starts to chant for the former president as he leaves the stage, bleeding. Trump is then rushed to a hospital. Later that night, he is flown to New Jersey. He appears to be well. There are a lot of questions we don't have an answer to right now. Why were the forces unable to prevent the attack? Absolutely. Analysis on X suggests that at least the snipers on the roof behind Trump
were likely scouting for dangers further away, Absolutely. with this rooftop possibly falling into the responsibility of other law enforcement agents. We were unable to corroborate that. Why couldn't armed men climb up on this building? What was Crooks's motive? The gunman had no criminal history in Pennsylvania's public court records. The New York Times found a voter registration record for Crooks. It shows that he was registered as a Republican. They also found that he donated $15 to a liberal voter turnout group through a Democratic donation platform in 2021. He was a kitchen worker and had a membership at a local shooting club. The FBI found suspicious devices in both his car and home. They are being evaluated by the agency at the time of this recording. The investigation is ongoing, and new information is being published by the minute. President Biden and various leaders around the world condemned the attack. The attack on you is despicable. I wish a speedy recovery. My thoughts are also with attacks such as will threaten democracy. Absolutely, absolutely. But the problem is, for ये जो प्रॉब्लम जो अभी हुई है, ये किसी भी कंट्री में किसी के भी साथ हो सकती है, और इसका पूरा रीज़न जो जाता है वो कहीं ना कहीं द हंगर फॉर पावर है. अभी जैसे यहाँ पर बोला कि सीक्रेट सर्विस एजेंट्स थे, उन्होंने इसको पहले डिटेक्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज सी जिस तरह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है एट अ टाइम लाइक दिस, एनीबॉडी इन यूनाइटेड स्टेट्स knows the power that Trump holds. It's not about the political power also. Financial power उसके बाद बहुत है. He has control over, he has $10 billion in his bank account and he is well to do. So he doesn't need, he has given this image that he doesn't need the presidency. But उसके बावजूद अगर हम देखते हैं तो US के जो political situation इस टाइम है, political scenario जो है, वो इतना ज़्यादा polarized है. मतलब हमारे यहाँ तो कुछ भी polarization नहीं है. हम तो फिर भी जैसे if I am there, I would appreciate Modi ji's work whenever he does good and I would criticize his work whenever he does bad. But वहाँ पर I don't think US के अंदर आज के दिन 1% भी ऐसे लोग हैं जो दोनों साइड को appreciate या criticize करने की हिम्मत रखते हैं. They are completely polarized, completely biased. दोनों साइड बटी हुई हैं completely. और वो एक अलग तरीके से they are filled with hatred. Especially जो left है वहाँ का जो लेफ्ट है वो कंप्लीटली वायलेंट हो चुका है. दे हैव लॉस्ट देयर माइंड्स एंड उन्होंने अभी मुझे नहीं पता किस तरीके से दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट देयर जेंडर्स, दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट पर्टिकुलरली एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एंड देयर आर फ्लैट अर्थर्स एंड एवरीथिंग जो भी. अब यहाँ पर सिचुएशन ये आ जाती है कि बीइंग अ लिबरल हाउ मच कैन यू एक्सेप्ट? सी if someone is liberal, basically, see, America is a liberal country. America is the definition of being liberal, as in you can particularly have any and every thought possible in your mind and you will still be an American as a citizen. You will still be respected. For example, this one, a 20-year-old 20 साल के लड़के को एक AR-15 राइफल चाहिए, डन, हम लिबरल हैं, हम प्रोवाइड करते हैं, नो प्रॉब्लम. बट वहीं पर आ जाते हैं कि कहाँ पर ये लिबरल और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ बीइंग अ सिटीजन ख़त्म होता है और कहाँ पर ये एक वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट सिचुएशन पे पहुँच जाता है. क्योंकि अगर हम नोटिस करें तो एक 20 साल का लड़का अगर प्रेसिडेंट कैंडिडेट के ऊपर शूट करने की हिम्मत रख सकता है, जिसका कोई लेना देना नहीं था, ही वॉज नॉट लाइक समवन ट्रेंड, ये एक नॉर्मल लड़का है जिसका जो कि वॉलंटियर करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, किचन में काम करता है उनके, एंड उसके बावजूद अगर इस तरह से होता है और वो अपने बाप की खरीदी हुई राइफल को लेकर आ रहा है, सो ही दैट मीन्स ही इज़ नॉट being planted there by someone else. अगर obviously we are assuming कि ये सारी information जो भी दी जा रही है वो सही है, obviously investigation होगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या है. But अगर ये सब हो रहा है तो this is extremely dangerous for the world, because अमेरिका को ही देखकर पूरी दुनिया लिबरल होने लगी थी और अमेरिका को देखकर ही पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी आने लगी थी. बट अगर डेमोक्रेसी इस लेवल पर आ जाती है जहाँ पर आपको फ्रीडम है हर चीज़ की, और हर चीज़ मतलब आप हर चीज़ को बोल सकते हो, आप किसी को लाइव थ्रेट दे रहे हो, आप अमेरिका के अंदर ऑब्वियसली स्कूल शूटिंग्स होना, बुली होने पर गन्स निकल जाती हैं, लोग नॉर्मली जाकर स्टोर्स को लूट लेते हैं, जो भी डिपार्टमेंटल जनरल स्टोर्स होते हैं, ये सब वीडियोस हमने सबने देखी हैं. एंड उसके बाद अगर हम अमेरिका को एक डेमोक्रेसी का फ्लैग बेरर मानते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी पूरी दुनिया के लिए. इस वक्त अगर हमें एज इंडियंस हमें कुछ सीखना है तो ये कि सबसे पहले तो वायलेंट होना ही नहीं है किसी भी केस में. बाकी ट्रम्प के लिए तो ये आई थिंक
अब यहाँ पर ना 2-3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि क्या ये पूरा का पूरा इवेंट स्टेज था? स्टेज हो सकता है, देखो कोई इसमें बहुत मतलब इट्स अबाउट बीइंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पर्सन। आपकी जो रेस है वो आपको दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बना देगी, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उस पावर के लिए आप किस हद तक जा सकते हो, वो क्वेश्चन भी हमें पूछना पड़ेगा। बिकॉज हम सब कुछ फेस वैल्यू पर नहीं ले सकते। फेस वैल्यू पर हम लेंगे तो वी आर जस्ट अनदर पर्सन, जो भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, रियल लाइफ में, वॉट एवर, उसको हम फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट दिस इज अ वेल नोन फैक्ट। सेकेंडली, हो सकता है ये स्टेज हो और ट्रंप के ही साइड से करवाया गया हो, या फिर ट्रंप के ही किसी पूरी सिचुएशन को जितवाने के लिए, इवन ट्रंप को ना मालूम, लेकिन ये करवाने के लिए कि ताकि रिपब्लिकन्स इस पूरे इलेक्शन को जीत जाए, तो ट्रंप। सो एंड इट इज़ गोइंग टू वर्क। ये इसी इवेंट की वजह से ट्रंप जीत जाएगा अभी। सेकेंडली, क्योंकि सीक्रेट सर्विस वालों ने नहीं देखा, सीक्रेट सर्विस वाले ने अवॉइड किया, तो क्या ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंट है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल और ऑपरेट और एग्जीक्यूट किया गया है बाय डीप स्टेट? अब डीप स्टेट क्या होती है? डीप स्टेट इज, अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होगा, बट लेट अस अज्यूम कि FBI, CIA, ये जो सब होती हैं और जितने भी सीक्रेट सर्विस एजेंसीज होती हैं, ये डीप स्टेट में आती हैं। एंड चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो किसी भी कंट्री हो, उसकी एक डीप स्टेट होती है जो कि इवन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से अलग काम करती है। दे डू नॉट केयर अबाउट प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ देश के हित में काम करना। और वो देश का हित कैसे डिसाइड करते हैं? इट इज़ डिसाइडेड बाय अगेन अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक डीप स्टेट है, उसको कंट्रोल किया जाता है। उसके ऊपर अगर हमें एक अलग वीडियो में फिर हम बात करेंगे व्हाट इज़ डीप स्टेट। बट फॉर दिस टाइम आई थिंक इन दोनों सिचुएशंस में, ये जो भी सिचुएशन हुई है, किसी ने भी करवाया हो, आइदर इट वॉज फॉर ट्रम्प और इट वॉज द डूइंग ऑफ द डीप स्टेट टू एग्जीक्यूट ट्रम्प। इन दोनों केसेस में फ़ायदा इस बार ट्रम्प को मिलने वाला है, एंड दिस इंसिडेंट इज गोइंग टू मेक हिम विन। ऑब्वियसली जो बाइडन इज़ नॉट वेल टू डू राइट नाउ। जो बाइडन की तबीयत पूरी ख़राब हो चुकी है, वो डिल्यूजनल भी है, डिमेंशिया तो उसको ऑलरेडी काफ़ी सालों से था। एंड उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो बाइडन जो है वो पीछे हट चुके हैं, एंड कमला हैरिस हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर द डेमोक्रेट्स।